Spontaneous emission of radiation from the unstable nucleus, and we have seen law of radioactivity in which rate of decay, number of nuclei converting per unit time is directly proportional to the number of nuclei present at that moment. More the number of nuclei, more fast will be the rate, more will be the rate of decay. ज्यादा न्यूक्लियाई कन्वर्ट होंगे दूसरे न्यूक्लियाई में. And if we do it, if we get the relation in what, after how much time the number of nuclei available is given by this relation and not the initial value. Lambda is called decay constant or disintegration constant. E is the exponential constant. Graph ऐसा आता है exponential decay. It is similar to the current decay in LR circuit. LR circuit हम लोग कर रहे थे, उसमें करंट डिके का पैटर्न भी ऐसे ही होता है. जिस समय हम स्विच ऑफ करते हैं सर्किट में, पीक वैल्यू से ऐसे डिके होता है वो. ओके. And activity also we have seen. It is a rate of decay. Magnitude of rate of decay is called activity. That also depend upon the number of nuclei. More number of nuclei, more activity will be there in the sample, which is lambda into n. Rate of decay directly proportional to n. एंड अगर n की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा रिलेशन में. यहाँ पे देखो लैम्डा इंटू n की वैल्यू ये रहती. lambda into n naught will be the initial activity. ठीक. यूनिट डीपीएस रहेगा और becquerel 1 dps is equal to 1 becquerel. Because unit is curie, and 1 curie is 3.7 into 10 power 10 BQ. Okay. All right. So how do we define the half-life? Half-life is time in which number of nuclei or activity becomes half. Half-life मतलब कितने टाइम में हाफ हो जाएंगे. Number of nuclei will be half of the initial value. Time in which number of nuclei or activity becomes half of its initial value. तो इसमें पुट कर दो, इसमें n वाले में. इसमें n नॉट बाई 2 पुट कर दो और t की वैल्यू t हाफ कर दो. n नॉट कैंसिल हो जाएगा और log लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो ये आता है हाफ लाइफ को हम t हाफ या t कैपिटल T से डिनोट करते हैं. Time in which number of nuclei or activity becomes half of its initial value, which is equal to ln2 upon lambda. Getting ln2 जो है नेचुरल log 2 है, उसको कॉमन log 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log 2 base 10.
0.3, ये 0.6 कितना होता है ln2 की वैल्यू? हाउ डू वी गेट दिस? आई टोल्ड यू कैसे करते हैं, इसका प्रूफ नहीं है, यू डोंट हैव टू लर्न द प्रूफ, बट अभी ये जो फार्मूला था ना, देखो t t when t is half time, n will be half of the initial value, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, n नॉट बाई 2, n नॉट और नॉट कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा, 1/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग ई, ये देखो ये हो जाएगा आपका माइनस ln2, लॉग ln ई की वैल्यू 1 होती है, पावर आगे आ जाती है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हाफ लाइफ, ये रिलेशन मिल जाएगा, गॉट इट और नॉट? लॉग ई ln ई इज 1, बिकॉज उसके बेस में भी ई होता है, तो लॉग की वैल्यू सेम बेस पर 1 होती है, जैसे log 10 बेस 10 है ना, ऐसा। इसमें ई नीचे आता है, ln ई, ln मीन्स log ई, आर यू देयर? Yes, sir. ln ई कैन बी रिटन ई बेस ई इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाता है, पावर आ गया गई माइनस लैम्डा टी, यहाँ से ये तो आपको ये सब लर्न नहीं करने, डेरिवेशन कोई भी नहीं है इसमें, you don't have to learn, but just for your interest I am telling you, maybe in chemistry you may require, just we are seeing the briefly and relation, that's all, no relation is there in this, ठीक है? Half life is ln2 upon lambda, lambda is the integration constant. Average or mean life of radioactive element is the ratio of total life of to the total number of nuclei. यहाँ पे टोटल लाइफ कैलकुलेट करके लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, तो टोटल लाइफ की जो कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करनी पड़ती है, दैट इज आल्सो नॉट इन द कोर्स, इट कम्स टू बी n नॉट अपॉन लैम्डा, n नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/λ आ जाता है, गेटिंग, इट इज कमिंग टू बी 1/λ, ठीक है? Reciprocal of decay constant, average life is reciprocal of decay constant. decay constant की यूनिट क्या होगी? What will be the unit of decay constant? बोलो, यहाँ से देख लेते, यहाँ से देखते हैं, एक मिनट, decay constant की यूनिट देखो, यहाँ से lambda will be inversely proportional to half life, हाफ लाइफ की सेकंड्स हो गई, decay constant की सेकंड हो जाएगी, पर सेकंड, सॉरी, गेटिंग?
आ रहा समझ में? देखिए कांस्टेंट वैल्यू एज ए यूनिट का per second. Average life is total life of all the nuclei divided by number of initial number of nuclei. तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1/λ आता है. एंड इन वन डिके अगर ये वैल्यू हम टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर दें, लैम्डा टी की जगह टाउ पुट कर दें, टाउ की जगह 1/λ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा n नॉट e टू द पावर -1 ये हो जाएगा. और यहाँ पर e कितना होता है 2.7, ये आपका 0.37 आ जाएगा. मतलब 37% बचेंगे. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग विल बी 37. 63% डिके हो जाएंगे इफ यू सॉल्व इट. तो also tau is time duration in which number of nuclei remaining are 37%. ठीक है. Alert which is also equal to 1/λ. Lambda is the decay constant. हाफ लाइफ में 50% बचती नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, एंड एवरेज और मीन लाइफ में 37% बचती. तो एवरेज लाइफ इज मोर देन हाफ लाइफ, है ना. ये ज्यादा मोर ड्यूरेशन है एज कंपेयर टू हाफ लाइफ. दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? देखो अभी हमने हाफ लाइफ का डेरिवेशन हाफ लाइफ डिस्कस किया था. इट इज ln2 अपॉन लैम्डा एंड 1/λ इज मीन लाइफ टाउ है 1/λ इज टाउ. इसमें पुट कर दो 1/λ का, ये 1/λ है, टाउ आ जाएगा. हाफ लाइफ इज टाउ इनटू ln2. ln2 की वैल्यू 0.69 और क्लोज टू 0.7 होती है ना. क्लियर? Are you there? Yes, sir. All right. Other relation of radioactivity. कल हमने देखा था n is equal to तो इसी में हाफ लाइफ के साथ भी एक रिलेशन बना सकते हैं. एक हाफ लाइफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो जाती है, नेक्स्ट हाफ लाइफ में उसकी हाफ हो जाती है, नेक्स्ट हाफ लाइफ में उसकी हाफ हो जाती है. तो उस लॉजिक से ये रिलेशन बन जाता है. n नॉट into 1/2 to the power total time upon half life. Total time upon half life. तो ये एक रिलेशन बनता है हाफ लाइफ के साथ. उसका नंबर ऑफ एटम n क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग. इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी हाफ और 1/4 और 1/8, या फिर 25% नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कब हो जाएंगी, क्या
12.5% कब हो जाएंगे? तो इसमें दे विल बी मल्टीपल ऑफ 1/2, तो 1/2 इधर भी आएगा, 1/2 इधर भी आएगा। नाउ द बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया रेडियो एक्टिविटी का, बट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यू कैन एक्सपेक्ट, और केमिस्ट्री में अगर है तो यू कैन एक्सपेक्ट। तो वी आर नॉट डूइंग न्यूमेरिकल, जस्ट ब्रीफली वी आर सीइंग so that you can see, you can just solve your own if you are going for competitive examination. फार्मूले देख बता रहा हूँ, केवल सॉल्व कर सकते हैं। All right. तो n नॉट ब्रैकेट में 1/2 की पावर t अपॉन t हाफ, t इज द टोटल टाइम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोले if half life is 10 years, find time in which nuclei will be 12.5% of initial value। क्या दिया? n इज इक्वल टू 12.5 ऑफ n नॉट दिया, परसेंटेज दिया है ना। 12.5 divided by 100 will be how much? 1/8। So value put कर दो, n is equal to n naught, यहाँ पे 1/8 n naught। टाइम निकलना है, हाफ लाइफ कितना है? 10 years। 1/2 to the power बेस सेम है, पावर इक्वेट कर सकते, दोनों तरफ 1/2 है। थर्टी ईयर्स में 12.5% बचेगा, विच इज 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। विदाउट फार्मूले से भी, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। 1/2 10 ईयर्स में हो जाएगा, उसका फर्दर हाफ दैट इज 1/4 नेक्स्ट 10 ईयर्स में हो जाएगा, और उसका भी फर्दर हाफ 1/8 नेक्स्ट 10 ईयर्स में हो जाएगा। विदाउट फार्मूला आल्सो यू कैन एंटिसिपेट। गेटिंग और नॉट? आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तो this is other relation to get the number of nuclei remaining in the sample।
हम लोग रेडियो एक्टिविटी में हमने देखा है कि देयर आर radiation of certain particles called alpha, beta, and gamma from the unstable nucleus. तो अल्फा डिके जो है ना, अल्फा इज अल्फा डिके हैवी न्यूक्लियस में होता है. उसमें क्या होता है कि दैट कूलम्ब फोर्स जो है वो डोमिनेट करने लगता है. पार्टिकल टेस्ट बिकॉज बिगर न्यूक्लियस है एंड our forces, this nuclear forces are the short range force. Coulomb force dominates, and nuclei has the tendency to lose the particles. तो protons जो है, they converts into the helium nucleus. Nucleons converts into the helium nucleus and tend to come out from the nucleus. So alpha decay, it happens in the heavy unstable nuclei. Alpha is the helium nucleus. कितने न्यूक्लियस होंगे अल्फा में? 4 न्यूक्लियस होंगे ना, 2 प्रोटॉन एंड देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स है ना. तो इफ देयर इज एनी एलिमेंट x, एनी न्यूक्लियर x, मास नंबर a एंड एटॉमिक नंबर z, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2 एंड अल्फा पार्टिकल निकलेगा प्लस q वैल्यू. certain energy will be released because of difference of mass. loss of mass से energy भी release होती है, which can be calculated by difference of mass. ये mass will be more, this mass will be less. Whatever the difference of mass is there, that converts into the q value, or called energy release. That energy will be shared by both the particles, alpha particle and this daughter nuclei. Alpha particle generally is very light particle, will carry more energy according to the law of conservation of momentum. Momentum conservation से इसका more energy carry करता है, more than 90% ये carry कर, और इसका mass ज्यादा है, it will be sharing less energy. Got it? तो alpha decay में A will be decreasing by 4 and A, देखो A भी 4 जैसा ही दिख रहा है, और Z and 2 are also similar looking. तो easy to remember, Z4 कम हो जाता है, A4 reduce हो जाता है, Z2. Got it? Are you there? Yes, sir. And what about beta decay? Beta decay can happen in the light nuclei. It can happen in the light nuclei. It is of 2 types, beta negative decay. ये कब होगा? It happens when number of neutrons are more than the certain required value. है ना? अगर number of neutrons stability के लिए जितने चाहिए उससे ज्यादा हो गए in any reactions, particularly when the nuclear reactions are happening in that number of neutrons are more in the particular nuclei, and it will tend to lose the neutron by how it is losing. एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बीटा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. बीटा नेगेटिव इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 1 neutron converts into 1 proton plus 1
electron which is called beta negative and one anti-neutrino, एक और particle है anti-neutrino ऐसा symbol है उसका, plus energy is released. Neutrons किसी nucleus में more than the required value है, तो one neutron will convert into proton plus electron which is called beta negative plus anti-neutrino. This is massless chargeless particle, negligible mass, no charge, therefore very difficult to detect it. And Q value, जैसे कोई एलिमेंट एक्स, कोई न्यूक्लियर एक्स है, उसमें से बीटा नेगेटिव अगर निकल गया, नहीं यहाँ पे देखो बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताओ इसके ए एंड जेड कैसे चेंज होंगे? ए में क्या इफेक्ट होगा और जेड में क्या इफेक्ट होगा, बोलो? बोलो ए जो रिजल्ट जो डॉटर न्यूक्लियर बनी है उसका ए कितना होगा? विल द ए डिक्रीज और इंक्रीज और रिमेन सेम? Remain same. तो जेड Z will increase by 1. वाई इट विल रिमेन सेम? एक न्यूट्रॉन कम हो गया. ए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है ना. एक न्यूट्रॉन कम हो गया लेकिन एक प्रोटॉन बन गया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस रिमेन सेम, तो ए विल नॉट चेंज. तो प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय जेड, तो जेड प्लस वन. नेगेटिव में बीटा नेगेटिव में प्लस हो जाएगा, नेगेटिव में जेड, जेड प्लस वन हो जाएगा, नेगेटिव में प्लस हो जाता है जेड. गॉट इट? इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यू नो. इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो ये इलेक्ट्रॉन है, electron formed in the nucleus comes out, which is called beta radiation, beta negative radiation. Are you getting this? All right. तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम देख रहे थे वहां पे इलेक्ट्रॉन ई माइनस ई प्लस वगैरह था. इट कैन हैपन इन द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ऑल, है ना. इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस. ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं बाहर निकलते, न्यूक्लियस में होते नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट देयर इन nucleus, but in the nuclear reactions it is getting formed and the nucleus. So electrons will come out from the nucleus, not from the orbit. वो डिस्टर्ब नहीं होते. इट इज द न्यूक्लियर फिनोमिना, न्यूक्लियस के अंदर की फिनोमिना है. ठीक है. होगा. किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में सपोज number of protons are more than the required value, one proton will convert into one neutron plus positron. Bit. It takes place when the number of protons are more than the certain required value. Beta positive is called positron, which has the mass of electron. Take minute. One proton
into one electron, one neutron. One positron. Which is nothing but a beta plus particle. And one neutrino. उसका काउंटर पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो का, ये भी मासलेस एंड चार्जलेस होता है, वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग। प्रोटॉन्स कन्वर्ट हो रहा है तो फिर से ए चेंज नहीं होगा, है ना, बिकॉज एक प्रोटॉन कम हुआ, एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिमेनिंग सेम, ए विल नॉट चेंज। वेयर एज प्रोटॉन कम हो गया तो Z -1 हो जाएगा, Z इज इंडिकेटिव ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। बीटा पॉजिटिव में Z नेगेटिव होता है, Z एक कम हो जाता है, गेटिंग। या एक और पॉइंट देखो इसमें, आपको प्रोटॉन का मास कम होता है एंड न्यूट्रॉन का मोर होता है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू हैवी पार्टिकल, प्लस पॉजिट्रॉन भी बन रहा है, तो राइट साइड की मास मोर है, तो इट विल टेक द मास फ्रॉम, इट इज पॉसिबल इन द न्यूक्लियस ओनली, light particle convert into heavy. I told you it will acquire the mass from the nucleus only. Nucleus में conversion possible है, proton converting into neutron है ना, independently it will not. All right. Okay. So what will be the effect on mass number in this? What is the effect on mass number to the atomic number in beta positive decay? बढ़ेगा घटेगा या नो चेंज? इनिशियल कितना है? A/Z फाइनल ये तो चेंज होता नहीं, अरे देर Yes, sir. तो Z कितना हो गया? माइनस हो गया ना, -1। बढ़ा की घटा, इंक्रीज और डिक्रीज? Sir, increase. यस, इनिशियल A/Z था, बाद में तो कोई Z -1 हो गया, है ना, तो Z -1 इज डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड, ये इसमें कन्वर्ट हो गया ना बाय, एंड which is stable, ये अनस्टेबल था because number of protons were more than the required value. So like this question can be formed and given to you. All right.
Now third one is the gamma decay, gamma radiation. It is not the particle, it is electromotivation. Alpha was the particle, beta was the particle, gamma is the radiation. तो इसमें क्या होता है जब न्यूक्लियस जब बीटा जब it is followed by alpha, it is followed by alpha and beta decay में, in alpha and beta decay nucleus is excited. When it returns to the ground state, जब वापस जाते हैं ground state में, there is 1 or 2 gamma photons radiated. It is followed by alpha and beta decay. After alpha or beta decay, nucleus goes into the excited state. It returns to the ground state after 1 or 2 gamma radiation. But there is no change in A and Z. Gamma is neutral and uncharged particle. Alpha was the alpha पे क्या चार्ज होगा बोलिए? हीलियम न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे ना. अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियस, तो उस पर डबल चार्ज होगा प्रोटॉन का. एंड बीटा इज आल्सो चार्ज पार्टिकल, बीटा नेगेटिव, इट इज इलेक्ट्रॉन और पाइथन. दिस इज अनचार्ज. तो जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट में से एक बीटा नेगेटिव निकल जाता है तो निकल बन जाता है. बीटा नेगेटिव है तो ये 28 हो जाएगा, 27 में प्लस हो जाएगा बाद. बट निकल इज एक्साइटेड इन एक्साइटेड स्टेट. व्हेन गोज टू द ग्राउंड स्टेट इन 2 स्टेप्स, अभी ग्राउंड स्टेट में निकल पहुंच गया, दो गामा फोटॉन्स निकलेंगे उसमें, इतनी एनर्जी के, क्वाइट हाई एनर्जी लेवल. इसमें इसकी जो न्यूक्लियस की एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, atomic energy was in electron volt. This is mega electron volt. Are you getting this? Nucleus की energy levels available नहीं है, but this indicates it has high energy levels, high value energy levels. Got it? Gamma has the maximum penetration power. High energy particles से, high energy radiation से इसकी penetration power maximum होगी. Alpha का mass more होता है, high ionization power. It can ionize the elements easily. So this was all about gamma. So let's see now. The question just there is one element, उसका mass number and atomic number दिया हुआ है, and if alpha, beta, gamma radiation taking place, how its mass and atomic number will change. Suppose ये है आपके पास, you have this X element, X nuclei converting into X1, which is converting into X2, X1, X is converting into X1 due to alpha decay, X1 is converting into X2 due to beta negative decay, it is converting into X3 due to beta positive decay, then converting into X4 by what is called gamma decay. So you have to write mass numbers and atomic numbers of each element. Right. Mass number and atomic numbers of each element.
इसका क्या होगा x का? आदित्य, x का मास नंबर, एटॉमिक नंबर बताइए। Atomic number 52. मास नंबर 104. ओके, मोर हो गया ना, अल्फा निकलने के बाद कम हो गया, देखो a डिक्रीज बाय 4 तो 100 रह जाएगा, z डिक्रीज बाय 2 तो 50 रह जाएगा ना। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे बीटा नेगेटिव डिके हो गया, x1 में से बीटा नेगेटिव डिके हुआ है तो x2 बच गया, x2 बन गया, उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर बोलो। 151. 100 is mass yes, number and mass number doesn't change, mass number doesn't change and नेगेटिव में z पॉजिटिव हो जाता है ना, 51 हो जाएगा। बीटा पॉजिटिव में भी mass number will not change and atomic number will be becoming minus, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करना है, -1 माइनस, है ना, 1 ही करना है कि 2 करना है, 1 होगा ना, बीटा नेगेटिव में 1 का चेंज होगा, वापस से 50 हो गया वो। प्लस में माइनस करना है z को बाय 1 नॉट बाय 2, गामा so no change. नो चेंज, 100 and 50। ठीक, इसमें आइसो बार्स कौन कौन से हैं, विच आर आइसो बार्स? ये सभी आइसो बार्स है क्या? आइसो बार्स के लिए हमें ये देखना पड़ता है, मास नंबर और आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर है ना, ये आइसोटोप है, दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, क्लियर, इसमें कोई डाउट है क्या? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें, जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस। नो डाउट, यहाँ पे जो हमने लिखा ना, ये डीके दिखा रहा है यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ राइटिंग हियर, यहाँ पे लिख दिया इसको, अल्फा डीके हो गया, इसमें बीटा डीके हो गया, बीटा माइनस, बीटा प्लस का, तो ये रिटन हियर ऑन द एरो, दिस इज द अदर वे ऑफ राइटिंग। ऑलराइट, तो जस्ट मिनट, just 2 questions we'll do, they are useful for your JEE and NEET point of view से बताइए इसको। इसका क्या आंसर होगा बोलो?
The half-life period of the radioactive element X is same as that of the mean life of another radioactive element Y. X का हाफ लाइफ Y की मीन लाइफ के बराबर है. Initially both have the same number of atoms. Then X फास्ट डिके होगा कि Y फास्ट डिके, ये सब ऑप्शन में यूजफुल ऑप्शन कौन सा हो सकता है? X and Y have the same decay rates initially नहीं. Decay rates सब कब सेम होगा? जब उनकी हाफ लाइफ इक्वल हो और मीन लाइफ इक्वल हो. ये भी रॉन्ग हो गया. इन दोनों में से एक सही होगा. Y will decay faster और X will decay faster. कौन फास्ट डिके होगा? X की हाफ लाइफ Sir, Y will decay faster. Y सर मीन लाइफ के टाइम तक वो 37.5 रिमेनिंग हो जाता है और हाफ लाइफ में 50%. ये 50% हो जाएगा. उतने टाइम में ये 37% हो जाएगा. तो Y will be decaying faster है ना? करेक्ट. Y will, बिकॉज Y की हाफ लाइफ कम होगी. हाफ लाइफ से भी अगर बोले इसकी X की हाफ लाइफ जो है मोर है, X की हाफ लाइफ मोर है, Y की हाफ लाइफ कम होगी, तो इट विल बी डिकेइंग फास्टर. जिसकी हाफ लाइफ कम होती जल्दी हाफ होता जाएगा. इन दैट सेंस आल्सो. या फिर हम सिंपली देखें, ये हाफ लाइफ में इस दोनों, इसकी हाफ लाइफ इसकी मीन लाइफ के बराबर है. ये उतने ड्यूरेशन में ये 50% हो जाएगा, ये 37% हो जाएगा. तो Y will decay faster. Got it? जिसकी हाफ लाइफ कम होती है वो जल्दी हाफ हो जाएगा ना, हाफ होता चला जाएगा. तो Y की हाफ लाइफ कम होगी बिकॉज Y की जो मीन लाइफ है इसके हाफ लाइफ के बराबर है. इसकी हाफ लाइफ मीन लाइफ से कम होती. या फिर सिंपल यही लॉजिक से कर लो ना. ठीक है. तो दैट यू हैव टू थिंक इन दैट. एक मिनट. दिस इज आल्सो फॉर जेईई एंड नीट के लिए. After 280 days, activity of radioactive sample is 6,000 dps decay per second. The activity reduces to 3,000 dps after another 140 days. The initial activity of the sample in dps is, initial कितनी activity थी उसमें? यहाँ से कुछ क्लू मिल रहा है क्या हमें? ये 6,000 dps है और ये 3,000 dps है 140 डेज में. हाफ लाइफ मिल सकती है यहाँ से.
3000 का आधा हो गया एक्टिविटी, आई मीन 6000 का हाफ हो गया 3000, हाफ एक्टिविटी हो गई 140 डेज में, तो हाफ लाइफ इज 140 डेज. Got it or not? Are you there? Yes, sir. देखो इनिशियल सपोज एक्टिविटी आर नॉट है उसकी, और 240 डेज में 6000 डीपीएस हो गई, ठीक है, और उसके बाद 140 डेज में 3000 हो गई, तो ये तो आधी हो गई 6000 की, तो हाफ लाइफ तो 140 होनी चाहिए. फिर ये निकालना में आर नॉट, तो एक्टिविटीज आर नॉट 1, तो आर ये आर हो जाएगी, इनिशियल एक्टिविटी आर नॉट है 240 डेज में, तो टी कितना हो जाएगा यहाँ पर 240 डेज, तो 240 डेज में 6000 हो रही, 6000 Sir, 280 days. सॉरी 280 है, ये भी 280 और ये आर नॉट, टोटल टाइम 280, हाफ लाइफ 140, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाफ की पावर 2 मीन्स 1/4 हो गया. बिना फार्मूले के भी कर सकते थे. देखो इफ यू डोंट रिमेम्बर द फार्मूला देन आल्सो वी कैन डू इट. कैसे? देखो हाफ लाइफ मिल गई हमें 140 डेज, तो ये 6000 जो है 6240 डेज के बाद हुआ, तो 140 डेज पहले कितना था 12,000 होगा, और उसके 140 डेज पहले उसका डबल होगा, में 2 हाफ लाइफ इन्वॉल्व है, तो 6280 डेज के बाद हो रहा है. इसका मतलब 140 डेज से पहले 12,000 रहा होगा, और उससे 140 डेज पहले 4,000 रहा होगा, तो हाफ हाफ करने से मैं बिना फार्मूले के भी हम क्लू निकाल सकते हैं. हाफ लाइफ पता लग गया तो ये हाफ लाइफ का डबल पीरियड है ना, यहाँ से हाफ लाइफ हमें मिली 6000 से 3000 रह गई 140 डेज में, तो बिना फार्मूले के भी एंटिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट 1 more minute. ये अपने इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन तक था एज पर द लेटेस्ट कोर्स. रेडियो एक्टिविटी दे नॉट रिटन ऑन दैट, है ना, ये सब रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट एक्स्ट्रा में आ जाएगा. हम लोगों ने इसलिए बहुत ब्रीफली किया है बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन दैट, है ना. फिर भी अगर बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन में कुछ टर्म्स आ रहे थे, एंटी न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रीफली कर लिया. इट कैन बी यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके हमें कसम ने ज्यादा नहीं किए. दिस आल्सो एक्टिविटी आल्सो, रेडियो एक्टिविटी के बाद के सारे पॉइंट्स समझ लो, they are deleted part. Directly may not be asked, indirectly some may be used. ठीक है, एक्टिविटी आल्सो, हाफ लाइफ आल्सो, एक्स्ट्रा में हम लोगों ने किया. ये भी एवरेज लाइफ आल्सो, ये भी एक्टिविटी का ही पार्ट है. दोनों के बीच का रिलेशन, ये एक्स्ट्रा. ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा. यही फार्मूला यूज कर रहे हैं वैसे. एक्टिविटी का ऐसा फार्मूला, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का,
तो एक्टिविटी का भी ऐसा बन जाएगा। नहीं, ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं, ये हमने कहीं और लिखा था, डेरिवेशन नहीं किया, somewhere else I have written। यहाँ पे देखो, ऐसा फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए अभी हमने यूज किया, एक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मास के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज ऑल थ्री आर डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड। ऑफ कोर्स ये मैंने जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल कराया, ये भी, एंड दिस वन अभी जो हमने अल्फा बीटा गामा, तो ये भी बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ एक्टिविटी, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट में आ गया आपका, अल्फा डिके एंड बीटा गामा डिके। गामा इज देयर, ठीक है। तो दिस विल बी ओनली यूजफुल फॉर योर JEE and other competitive examination, NEET and other competitive examination point of view, board examination point of view, there are deleted part, complete radioactivity, we can say it is deleted part। तो ये सब radioactivity के ही part थे, alpha beta gamma decay, half life, mean life and activity and law of radioactivity। Got it? It will be useful। Tomorrow we will start the new chapter, semiconductor। ठीक है? Sir, can you once show average life of radioactivity element? Yeah। Okay, thank you, sir. All right, चलिए, thank you। Thank you, sir. Okay, चलिए, I'm ending now। Thanks।